Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of are you good class and safe from COVID-19 class. As you know that we are giving you a message. Wear mask, follow physical distance, maintaining hand hygiene, wear mask properly, stay at least 6 feet from others, wash your hand frequently, always with soap and water for at least 20 seconds. Remember to to not touch your face, do not share your food or drink with other class. This rule not only save you, this rule save your family also class. So please follow this rule. Now we will goes on my topic or classes whatever we are going regularly. Yes, class. Hello, everyone. Hope all of you good class. Now, today we will discuss a converse of Thales theorem. Converse of Thales theorem. We have already discussed about the theorems, Thales theorem. Yesterday in the last video we have discussed. Today converse. Converse का what is the meaning of converse? Converse means just opposite. In the last video we have discussed about the ratio. किसके बारे में मैंने डिस्कस करा था? रेशियो का. If this line is parallel, then these ratio are equal. है ना class? So today we will discuss if ratio are equal, then line will be parallel. ठीक है? So class, we will take let A B C be any triangle है ना. ए बी सी क्या है? कोई भी एक ट्राइंगल है. डी ई इज एनी लाइन which divide AB and AC on the point D and E. डिवाइड करा. ठीक है ना क्लास. तो कहता है रेशियो विल बी सेम. क्या है? इट इज सेइंग दैट कि रेशियो विल सेम. तो रेशियो गिवन में हम लोग लिखेंगे क्लास गिवन दैट इज द AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC. ये दोनों जो होता है इक्वल है. देन टू प्रूफ में क्या है क्लास? टू प्रूफ में क्या है? दैट इज द DE पैरेलल टू BC. क्लियर है? ये हमें प्रूव करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ वी विल प्रूव इट? देखो जो गिवन रहता है वहां से हम लोग चलते हैं. सो क्लास फर्स्ट लेट कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या? ड्रॉ अ लाइन बता दो क्या होगा. विच लाइन? F. ठीक है ना. ड्रॉ अ लाइन DF है ना. विच डिवाइड AC. Draw a line DF which divides AC on F, and it is a parallel to BC. ये जो होता है BC के पैरेलल होंगे. क्लियर है क्लास? सपोज दैट कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा? ड्रॉ अ लाइन DF. ये कोई दूसरी लाइन ले लिया जो कि पैरेलल है BC के. DF अनदर लाइन.
ये लाइन पैरेलल नहीं है, इसको हमें पैरेलल प्रूव करनी है। ये लाइन पैरेलल है, दैट्स व्हाई इन ट्राइंगल ABC में क्या we know that क्या आप जान रहे हो कि AD अपॉन BB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है ना क्लास? It is a given, so it's our first equation. And according to construction, what we will get? क्या हम लोग को मिल रहा है क्लास कि AD अपॉन BB इक्वल टू AF upon FC. Why we have written such ratio? Why we have written? बताना थोड़ा. You know? Huh? Everything you have forget. Thales theorem. According to the Thales theorem, what you know that if a line DF is parallel to BC, if a line DF is parallel to BC, then what happened class? What happened? Just reply me. What happened? The ratio will be equal. Absolutely right. क्या होगा? Ratio will be equal. है ना class? So here we can write according to the Thales theorem. I have written up. Now it is clear? Yes, sir. Now, very good. Now what you are looking here? आप देखो तो थोड़ा AD अपॉन DB, ये जो LHS साइड है और ये LHS साइड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, if LHS will equal, then what happen? RHS will also equal. Then class we can write AE upon EC equal to AF upon FC, है ना? ये दोनों इक्वल होंगे. Are you satisfied now? Yes, sir. या नहीं? Am I right? Yes, sir. अरे वाह, वेरी गुड. तो ये जो होता है, ये दोनों जो होता है इक्वल हो गए. बट प्रॉब्लम क्या है पता है क्लास? AE अपॉन EC और AF अपॉन FC हमें प्रूव क्या करनी है? DE पैरेलल टू BC. तो यहां से कहां प्रूव हो रहा है कि DE पैरेलल टू BC प्रूव हो रहा है? चलो अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है. लिसन क्लास, ये जो होता है, अब थोड़ा सा एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे और इसको पूरा करने की कोशिश करता हूं. देखो AE अपॉन EC, AE अपॉन EC और AF अपॉन FC. दिस वन आप याद करो, एक दो रेशियो मैंने और भी बता रखा था, है ना? आगे बढ़ाने के बाद रेशियो इज दैट कि वी कैन राइट हियर +1 और +1, दोनों साइड 1 ऐड करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता. पड़ता है क्या? पिछले वाले में पड़ा था क्या? नहीं पड़ा था, यहां भी नहीं पड़ने वाला. ठीक है ना क्लास? So class we can write here AE plus EC upon EC equal to AF upon AF plus FC upon FC. Are you getting my point? It's a clear now? So class now you can say that AE plus EC क्या होता है? AC. वेरी गुड. और उसके बाद में EC वी कैन राइट है
और AF प्लस FC व्हाट AC बता दो जल्दी AC तो ऐसा बोलो ना, है ना, yes sir अपॉन FC। अब आप देखना थोड़ा, वी कैन डू इट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कर दूं अगर आपकी आज्ञा हो, कर दूं? अरे हाँ कर दे, ठीक है ना। AC अपॉन ये क्या हो गया AC, इसको इधर भेज रहा हूं और इसको इधर भेज देता हूं, EC अपॉन FC। अब ये दोनों कट गया तो क्या आया, EC upon कटने के बाद क्या आया 1 EC अपॉन FC। therefore class you can write FC equal to EC। ये आया या नहीं आया, यानी FC इक्वल टू EC हो गया। FC इक्वल टू EC। व्हाट इज द मीनिंग, बोथ डिस्टेंस आर इक्वल, बोथ डिस्टेंस आर इक्वल। तो ये क्या F कहीं दूसरे जगह होगा, F इज अनदर पॉइंट, F is another point. No, F point will lie on E. F point will lie on E. है ना? So write a line, है ना? एक लाइन लास्ट नीचे में लिख दो, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रफ कर दूं क्या? yes sir लिख दें कि we have got FC equal to EC. Therefore, we can write F is not another point. Another point. F will lie on E, है ना? Therefore, we can write DE parallel to BC. DE parallel to BC. Are you getting my point? sir Yes, class. Now we will move to our exercise 6.2. 6.2 exercise में what is? It's your first question or it's a too much easy question. है ना, you can solve it easily, है ना। So first chance I want to give you, so please first you will solve it and use your concept। clear है class? चलो हम लोग देखते हैं पहले कि what is it? It's a ratio given क्या है class? What is it? given क्या है? DE parallel to BC in figure। It's our first figure and it's our second figure, ठीक है ना? फर्स्ट फिगर है सेकंड फिगर। क्लास गिवन DE पैरेलल टू BC गिवन है ना? हाँ वेरी गुड। देखो पैरेलल है तो व्हाट इज सेइंग दैट आर-थेल्स थ्योरम कि इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन is a parallel, this and this line are parallel, then what we will do? Same ratio। तो बस कुछ नहीं करना और फाइंड क्या करना है क्लास? फाइंड ये भी एक लाइन लिख लीजिए EC इक्वल टू व्हाट? चलो अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम क्या लिखूं आप लोग बताओ? AD अपॉन DB इक्वल टू AE upon EC AE अपॉन EC। वेरी गुड। अब बताओ AD कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर एंड प्लस DB 3 सेंटीमीटर 3 cm और AE कितना? 1 cm। अरे वाह। एंड EC है ना क्लास? क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं क्या? yes sir इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। What happened? 1.5 EC equal to 3 and EC equal to 3 upon
मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, यस सर। तो 1.5 देन 1.5 और इस पॉइंट को हटा दूं, जीरो रख दूं, सारे लोग जानते हैं 5 15 टू जा 30 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। 2 cm. So class 2 cm is our right answer. Are you getting my point? यस सर। Now next questions. है ना? Now next question, second question is saying that क्या कह रहा है क्लास कि आपका D पैरेलल BC, इसमें भी DE ही लिख रखा है, so you will don't get confused कि DE given में again we will write given DE parallel to BC. अरे यार इसका B तो लिखना भूल गया था मैं, B and C। clear है क्लास? So BC, this is a BC class. Now find क्या करना है? Find क्या करना है? AD। बोलो ना, AD इक्वल टू व्हाट, है ना? आपकी रिप्लाई मुझे अच्छा लगता है ना, इसलिए आपकी रिप्लाई चाहिए क्लास। नाउ AD we want to find, what we will do? Again we will Thales theorem। use Thales theorem. अरे वाह, very good. We can write here class AD upon DB and AE upon EC. सबको समझ में आ रही है? यस सर। AD कितना है? बताइए। We need to find, और DB कितना है क्लास? 7.2 7 AE कितना है क्लास? 1.8 1.8. How much that is the EC? 5.4 5.4. Now you can calculate it. यस सर। बिल्कुल, आप इजीली कैलकुलेट करते हैं। चलो जल्दी फटाफट करके मुझे बताओ। Yes class, now you have done. AD we can write, देखो मुझे बार बार क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको बस थोड़ा सा शॉर्ट चाहिए, इट्स अ मैथ्स, है ना? और जितने अच्छे से आप कम टाइम में सॉल्व करें, दैट इज द बेटर। सो क्लास I want to 7.2 will send this side and it is in form of division, so it will converted into multiplication. We can write here 1.8 upon 5.4 into 7.2. देखो एक पॉइंट से तो एक पॉइंट आप कट कर दिया, है ना? अब यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, 10 हो जाएगा। अब आप बताओ 18 3 और ये 3 से कट रहा है क्या? किससे कट रहा है? जल्दी बताओ। 24 इतना, और ये कितना हो गया? 2.4 cm. It is your right answer. Yes class. Now next question is saying that question number 2, E and F are the point on the side PQ and PR, है ना, respectively of a triangle PQR. एक ट्राइंगल है, that is the PQ and R. PQR, it's a triangle. और क्या है? E and F is a point. E and F is a point of PQ and PR, है ना? It is a given ना क्लास? यस सर। यही मुझे दिया हुआ for each of the following cases. हमें ये फर्स्ट केस दिया हुआ है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? I will solve one cases, है ना? And rest of all you will do yourself, है ना क्लास? आप चेक करके बताना कि ये पैरेलल है या नहीं है, ठीक है ना क्लास? ये व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पैरेलल? क्या होनी चाहिए कि ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल होनी चाहिए, है ना? दूसरी, अब यहां पे हमें क्या क्या दिया हुआ है क्लास? PE दिया हुआ है, PE एक फर्स्ट केसेस में, दैट इज द PE इक्वल टू 3.9 cm.
EQ is 3 cm and PF is 3.6 cm or PF is 3.6 and FR is 2.4. Now what you will do, बताओ जल्दी आप क्या करोगे? कुछ नहीं, पैरेलल हमें प्रूव करनी है ना, पैरेलल प्रूव करनी है ना, तो क्या करना है? इफ द रेशियो विल बी इक्वल देन लाइन विल पैरेलल, इफ इट इज नॉट देन नॉट पैरेलल. यही तो हमें बताना है क्लास. सो क्लास यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द, है ना, यू नो दैट, हम लोग लिखेंगे वी नो that according to Thales theorem, है ना, क्या जानते हो? Thales theorem से क्या जानते हो कि if क्या होगा, if PE upon EQ equal to PF upon FR, अगर ये दोनों इक्वल हैं, है ना, देन क्या होगा? EF पैरेलल टू QR, है ना, ठीक है ना, यही होता है ना. तो लगा दीजिए आप. इस रेशियो हमें दिया हुआ है, अगर दोनों इक्वल आता है देन वी कैन से दैट इट इज अ पैरेलल, इफ नॉट वी कैन से दैट नॉट पैरेलल. सो क्लास वी कैन राइट हियर 3.9 upon 3 equal to 3.6 upon 2.4, this और ये, है ना, तो ये कितना आ रहा है? 13 3 और ये 10 3 और ये कितना आ रहा है? 12 3 और 2 यही तो आ रहा है क्लास. What ratio we have got? That is the, क्या मुझे मिला रेशियो? 13 upon 10 equal to 3/2. दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये 1 पॉइंट, देखो अगर मैं करूं ये 1.3 आया और ये क्या आया 1.5, यही तो होगा अगर पॉइंट में बदले. तो 1.3 इज नॉट इक्वल टू द 1.5. देयरफॉर वी कैन राइट EF नॉट पैरेलल टू कितना QR, है ना. पहली कंडीशन में तो नहीं आया क्लास. नाउ यू विल चेक अनदर कंडीशन. ओके क्लास, नाउ यू विल डू नेक्स्ट क्वेश्चंस. You will just do a practice, whatever possible you can do. Thank you and have a nice day. Thank you, sir.